हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF गुरु पर। सो हेयर वी हैव वन मोर सॉल्यूशन वीडियो फॉर द कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन ऑफ 18 June 2024 कंप्यूटर साइंस पेपर 2. So in this video I am going to continue with the unit number 3. Already I have told you that this solution is unit wise. तो हम आप एक एक यूनिट प्रिपेयर करके भी इस सॉल्यूशन को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर रिवीजन पर्पस. So now see, to get this PDF, join the Telegram channel. I will share this PDF over the Telegram. Daily PDF updates and notifications are available on the Telegram channel. So आप इसको चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप सर्च करिए टेलीग्राम पर @RashmiJRFGuru and definitely you will get this channel. Join this one. Other than this, we have ऐप जहां पर मैं कंडक्ट कर रही हूँ आपकी वीकली मॉक टेस्ट. This week we are going to target unit number 9 and 10. Unit number 9 and 10. So be ready with that and access all the previous mock test as well. Just download the app and आपको सारे mock test available हो जाएंगे. So this is the schedule. 11th August there will be the mock test on unit number 9 and 10. Finally we have unit mock test on unit number 1 and 2. Now for the complete preparation of UGC NET December 2024, you can join my new batch. It is live now, and here you will get the best, like all the classes will be the live. So theory classes, practice sessions will be there, and you will get the practice on that will be the topic wise. That will be previous year question of NET and GATE. You will get mock test and revision sessions as well. So you can, if you are preparing for December, approximately 5 months are there in our hand, so you can start your preparation right now. So yes, this is the detail about the complete course. If you want to do self study, तो सेल्फ स्टडी के लिए भी रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है विद ऑल दीज. सिर्फ इतना डिफरेंस होगा, ऑल दी थिंग्स आर रिकॉर्डेड. डाउट क्लैरिफिकेशन इज अवेलेबल 24/7 and you can ask your doubt. Rest you can access through the recorded course. So there will be the mock test, there will be the previous year paper solution, recorded topics will be there, everything you will get. So yes, this is about my courses. Now let's continue our solution. So we were solving the paper of UGC NET 18 June 2024 और इसका ही रीनेट एग्जाम हो रहा है. सो नाउ आई एम एट यूनिट नंबर 3, है ना, और हमने ऑलरेडी यूनिट 2 सॉल्व किया हुआ है. नाउ वी हैव यूनिट नंबर 3. See, arrange the following in the correct order so they can follow the proper runtime environment. We have programming statement, compilation, memory allocation, type of variable, or the memory deallocation. So like what you can do now, you can start it with the elimination. आप elimination से start कर सकते हो. Like first we should have the programming statement now. First we should have programming statement and last step should be the memory deallocation. So like I can eliminate the option A, ऑप्शन 3 and 4 बिकॉज स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ए से होगा, और एंड किससे होना चाहिए भाई, मेमोरी डीअलोकेशन. स्टार्टिंग विद ए एंड ई द मेमोरी डीअलोकेशन. सेकंड स्टेप क्लियर है, ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी है, दैट इज कंपाइलेशन. After compilation, should we go for memory allocation or should we verify the type of variable? तो obviously जब आप एक compilation process को देखते हैं, sorry, something, ओके सॉरी. तो जब आप एक कंपाइलेशन प्रोसेस को चेक करें तो कंपाइलेशन के बाद क्या होता है, लाइक फर्स्ट टोकन रीड किए जाते हैं, टोकन के बाद आप डेटा टाइप चेक करेंगे एंड डेटा टाइप के बाद यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन होगा. दैट इज द पार्ट ऑफ कंपाइलेशन. ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ कंपाइलेशन. सो लेट्स सी कि यहाँ पर सीक्वेंस कैसे वर्क कर रही है. यस, दिस इज द क्वेश्चन. So like we have programming statement, then next आपका आ जाएगा, next will be compilation. इन compilation, है ना, कंपाइलर का वर्किंग क्या होता है भाई, टोकन, पहले तो टोकन को चेक किया, टोकन के बाद
सिंटैक्स चेक किया, सिंटैक्स एनालिसिस के बाद आता है सिमेंटिक एनालिसिस, जिसमें डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल को वेरीफाई किया जाता है। तो ऑब्वियसली कंपाइलेशन के बाद डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल देखेंगे, देन मेमोरी एलोकेशन, फाइनली डी एलोकेशन। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2। नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस इज परमिटेड डायरेक्टली, जावा में तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि किसी ऑप्शन में जावा लिखा हुआ है बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। नाउ सी प्लस प्लस, यस इट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, नाउ वीवीनेट एंड बेसिक। सो देखिए जो विजुअल बेसिक है एंड जो आपका वीवीनेट है वो डू नॉट बेसिक, इट डू नॉट सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड यदि है ना एंड बेसिक डज नॉट सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो फाइनली जो मेरा आंसर है विद एलिमिनेशन जावा को भी एलिमिनेट कर दिया। सो आई हैव ऑप्शन ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। नाउ vb.net, like you can have only two option AC और AC, तो E does not support, so only जो option है वो आपका AC। फिर भी नॉलेज के लिए हमको पता है C++ सपोर्ट करता है, पाइथन ऑल्सो सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली, एंड यदि हम बात करें बेसिक विजुअल बेसिक दैट इट डू नॉट सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। जावा सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट but it does not support the multiple inheritance. Now which of the following not an object oriented programming language? पर्ल, ये वाला पर्ल इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था पर्ल, बट हमेशा याद रखें एग्जाम में इस तरीके की गलती कंसीडर नहीं करते हैं। पाइथन, स्मॉल टॉक और एसक्यूएल प्लस। स्मॉल टॉक, पाइथन एंड पर्ल और आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाइल एसक्यूएल प्लस इज नॉट, है ना, ये आपकी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज नॉट अ object oriented programming language. Now the output of the following C++ program is output क्या होगा? So like you can see integer x and pointer variable is given. एक वेरिएबल x क्रिएट किया गया है, एक पॉइंटर वेरिएबल p क्रिएट किया गया है। नाउ x में आपने वैल्यू असाइन किया 30 इज ओके। Now what we are doing now, p is a pointer and we are trying to assign the value of x, है ना, p is a pointer so it should store the address of x, but हम क्या कोशिश कर रहे हैं, p में x की वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, and that is an error। ये एक एरर है, ठीक है, ये एक एरर वैल्यू होगी, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 4। Now we have match the table, union function, interactive environment, output device, virtual reality, shadow mask, subroutine, user defined data type. So union क्या है, user defined data type, function it is equivalent to subroutine, interactive environment आपको मिलता है virtual reality में, shadow mask is a output device, that is the type of display device, है ना, आपका जो कलर डिस्प्ले में जो अप्रोच यूज होती है दैट इज योर शैडो मास्क। तो यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है, दिस इज ऑप्शन 1, ठीक है, योर आंसर शुड बी ऑप्शन 1। नाउ फॉर द लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड, तो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम सीधे मैंने आपको पीपीटी दिया हुआ है, डीडीए एल्गोरिथम, वी हैव ब्रेसनहम एल्गोरिथम एंड मिड पॉइंट एल्गोरिथम, बट यहाँ पर आपको ए और बी और ए और सी सिर्फ दो कॉम्बिनेशन दिए थे, हाँ या बी एंड सी, सो वी हैव ए बी सी शुड बी द आंसर, बिकॉज आपको पता है कि जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है वो डीडीए है, ब्रेसनहम है एंड मिड पॉइंट ड्राइंग एल्गोरिथम है, बट हाँ हम यदि ये क्वेश्चन हमको मिलता तो हम चैलेंज कर सकते थे, वी कैन चैलेंज, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल आंसर बन रहे हैं ना, या तो आप डीडीए ब्रेसनहम आंसर कर सकते हो और यू कैन आंसर द ब्रेसनहम एंड मिड पॉइंट, है ना। सो यस यहाँ पर हम मल्टीपल क्वेश्चन आंसर है, सो करेक्ट आंसर है डीडीए ब्रेसनहम्स एंड दिस इज लाइक ये मेरी क्लास की पीपीटी है। सो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, डीडीए, मिड पॉइंट, ये तीनों एल्गोरिथम मैं आपको पढ़ाती हूँ। सर्कल ड्राइंग में हमारा आ जाता है मिड पॉइंट एंड ब्रेसनहम ओनली, देयर इज नो डीडीए एल्गोरिथम फॉर सर्कल ड्राइंग। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम आर for the line drawing, are used for the line drawing. Now see which of the following is a markup language, तो अगेन इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज आपका जो मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है,
So we have HTML, XML, XHTML, DHTML, SGML, XSL, WML and LML. ये सभी आपके मार्कअप लैंग्वेज हैं। यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे लिए है वो है HTML, XML एंड DHTML, दैट इज डायरेक्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन I will go with A, B and C. Now we have unit 4. Unit 4 का जो क्वेश्चन था it was the comprehensive question and easy था. A company is implementing a new database, manage its customer information. The database contain the table for, देखिए टेबल किस किस के लिए है, कस्टमर के लिए है. Table is for the customer, then order and then product and sales. Okay, sales representative. Now each customer can place the multiple order. One customer, ये customer can place, relation क्या बन रहा है, place and multiple order. से हो गया multiple order. Each customer, individual customer can place the multiple order. Each order can contain the multiple product. So again, now multiple order can have multiple product. Multiple order can have multiple product. Each order is associated with स्पेसिफिक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. अब ये जो ऑर्डर हो रहा है तो ऑर्डर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, बहुत क्लियर पिक्चर नहीं होगा, ये आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. तो सबसे पहले बोला गया कस्टमर एंड देन यू हैव ऑर्डर. ऑर्डर के बाद आपसे बोला गया प्रोडक्ट एंड सेल्स पर्सन. नाउ कस्टमर और ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशन है, ईच कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर. सो प्लेस पी लिख रही हूँ, मल्टीपल ऑर्डर, ईच वन टू मैनी, है ना, वन टू मैनी. नाउ ईच ऑर्डर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट. each order can contain multiple product. So can I say multiple order can contain multiple product? Yes. Each order is associated with specific. Each order, हर एक order, है ना, like single order, one order will be associated with each order is associated with specific sale person. मतलब sale person तो single होगा, but समझिए single sale person may have the multiple order. हो सकता है ऐसा, single sale person may have the multiple order. So now the database, ये आपने सिर्फ रियल लाइफ सिनेरियो लिया है. वन कस्टमर, एक कस्टमर कितने ऑर्डर दे सकता है, मल्टीपल ऑर्डर दे सकता है. मल्टीपल ऑर्डर कैन बिलोंग्स टू द वन कस्टमर, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मल्टीपल ऑर्डर बिलोंग्स टू मल्टीपल कस्टमर. ए ने भी वही ऑर्डर, वही डिलीवरी आप ए को भी कर सकते हो, बी को नो, है ना. तो मैनी ऑर्डर can belong to single customer, but one customer can have the many order. now यहाँ पे आ जाता है, यदि हम बोले कि सिंगल ऑर्डर, है ना, सिंगल ऑर्डर हैव द मैनी प्रोडक्ट, एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं. कैन आई से द प्रोडक्ट कैन बिलोंग टू द मल्टीपल ऑर्डर? यस. तो यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा मैनी टू मैनी. अ सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो आपके आइटम्स है ना, प्रोडक्ट आइटम्स हैं. तो हो सकता है क्रीम, जो आप इंक की बात करें तो इंक कैन बी परचेज बाय द मल्टीपल कस्टमर, सो इट कैन बी द पार्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्डर. एंड नाउ द ऑर्डर, सेल्स पर्सन, order should be managed by the single sales person, but single sales person can manage many order. तो ये आपकी जो ER डायग्राम है तैयार है. Now, which SQL query retrieve the total number of distinct customers who have placed the order? SQL query the total number of distinct customers. हमको क्या find out करना है, distinct customer find out करना है, and who have placed the order. Placed order, ठीक है, यहाँ आपका रिलेशन बन रहा है placed order. So like you can see, वन टू मैनी है, वन टू मैनी है तो सिलेक्शन कहाँ से होगा, ऑर्डर से हमको रिजल्ट देना होगा. सेलेक्ट द काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी. ऑब्वियसली कस्टमर आईडी विल बी द फॉरेन की हियर, ये यहाँ पर फॉरेन की बन जाएगी. एंड एज द टोटल कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर,
ओके तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1 डायरेक्टली सॉल्व हुआ। सेलेक्ट द काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी। ऑब्वियसली जब आप ऑर्डर टेबल को एनालाइज करें तो वन कस्टमर में प्लेस द मल्टीपल ऑर्डर, तो सीआईडी रिपीट हो रही होगी, कस्टमर आईडी रिपीट हो रही है। हमने सिर्फ कस्टमर काउंट करना है, तो हमने लिखा डिस्टिंक्ट कस्टमर एज टोटल कस्टमर एंड फ्रॉम ऑर्डर। वाई फ्रॉम ऑर्डर? बिकॉज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ऑर्डर जो प्लेस है, रिलेशन जो प्लेस है, वो कहाँ चला जाएगा, वो जब आप टेबल में कन्वर्ट करेंगे ना तो ऑर्डर एंड प्लेस मर्ज हो जाएंगे। ये मैंने आपको सिखाया है, टेबल कन्वर्जन सिखाया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि विच एसक्यूएल क्वेरी रिट्रीव द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय अ स्पेसिफिक कस्टमर। तो ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय अ स्पेसिफिक कस्टमर। अगेन हमको क्या करना है, ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं बाय अ स्पेसिफिक कस्टमर, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा, फ्रॉम ऑर्डर एंड फ्रॉम ऑर्डर्स, तो वो तो ठीक है। नाउ आपको काउंट करना है, काउंट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ऑब्वियसली जो ऑर्डर आईडी होंगी उनको हम काउंट करेंगे, और सिंस ऑर्डर आईडी आपको काउंट करना है तो सम तो नहीं हो सकता। काउंट ऑर्डर आईडी एस्ट्रिक, इट विल गिव यू ऑल द टपल्स। डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी डिस्टिंक्ट नहीं करनी है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो आपका आंसर बन रहा है, वी शुड हैव, हाँ वी शुड हैव टू काउंट द डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी। मे बी यदि किसी ऑर्डर की मल्टीपल एंट्री है सो वी शुड सेलेक्ट द, बेसिकली इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लाइक वी कैन काउंट ऑर्डर आईडी एट द total order from the order where the customer id is equal to customer, but यदि हम distinguish कर लें and if there is a probability of multiple entry of order id, so definitely this query will give you the more accurate result. The select count distinct order id as total order from the order where customer id will be equal to customer, so it should be option 3। अब देखिए, which of the following best describe the relationship order table and the customer table? One to many, शुरू में ही बताया, one customer can place many orders, so it is one to many। ये आपका one, हाँ one to many। Which of the following is likely have the foreign key? अभी आपको यहाँ पर बताया कि जो मेरी ऑर्डर टेबल थी, ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी इज अ प्राइमरी की, ऑर्डर आईडी में कस्टमर आईडी इज अ प्राइमरी की, है ना। लाइक जब आप यहाँ पर देखें जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की आईडी भी कहाँ मेंटेन होगी, into the order, so it have the foreign key, customer id is also foreign key, है ना, ये भी आपका foreign key है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर विल हैव द कस्टमर आईडी। ऑर्डर एकमात्र ऐसा टेबल बनेगा जो किसका रेफरेंस ले रहा है, जो आपके कस्टमर का भी रेफरेंस ले रहा है, इट हैव द customer id and it is also taking the reference of sales person, so sales id will be the foreign key, so it have two foreign key। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा इट विल बी ऑर्डर्स, it will be orders। Finally, based on the passage, which of the following is true? Each customer can place only one order, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, it can place many order। Each sales representative can multiple customer account, yes। Each order can be associated with one product and the database does not include the table for the product, so ये आपका आंसर होगा। Now see next question from DBMS, the technique used to handle the phantom problem, the technique used to handle the phantom problem, time stepping है, index locking है, predicate locking है, execution logic, एग्जीक्यूशन इंडेक्सिंग है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं फैंटम प्रॉब्लम की, व्हाट इज फैंटम प्रॉब्लम, तो बेसिकली मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया कि आपने क्या किया, आपने चेक किया अपना अकाउंट मॉर्निंग में, इट हैज द 2000, अकाउंट की बात नहीं करती मैं, हमेशा आपसे बोलती हूँ कि योर वॉलेट हैव द 2000 रुपीज, बट जब इवनिंग में आपने अगेन देखा तो उसकी जो अमाउंट हो गया वो हो गया 18,000, है ना। तो इसका मतलब है कि किसी ने 200 यहाँ से लिए हैं,
सो व्हाट यू हैव रीड इट 2000, एक्स वेरिएबल की वैल्यू आपने रीड की थी तब 20 थी, बट अगेन जब आप चेक कर रहे हो इट इज 18. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द फैंटम रीड. इसको आप क्या बोलते हो? फैंटम रीड. So the phantom problem occur in database when the transaction read the set of rows that satisfy a condition, but another transaction insert or delete the row that would satisfy the condition. This can lead to inconsistency in result. और इसको आप फैंटम प्रॉब्लम बोल रहे हो, है ना? एक बार जब आप चेक कर रहे हो तो वैल्यू 20 है, फिर 18 है, सो इट इज इनकंसिस्टेंसी. और इसकी दो अप्रोच हो सकती है. फर्स्ट इज इंडेक्सिंग लॉकिंग and second is predicate locking. Index locking and predicate locking can be the two solution for. Obviously lock कर दो, no one can change. लॉक कर दे, no one can change. So solution क्या होगा? index locking. Now which of the following statement is false? A user can assign privilege to any user or on any relation. आप किसी और के घर का एक्सेस आप दे सकते हो क्या? आंसर है नो. A user can assign the privilege to any user on its own relation. Yes, ऑप्शन बी सही है. तो यहाँ ए तो आप एलिमिनेट कर सकते हो. नाउ this option you can eliminate because A is false, B is true. Now दो option है, B or D, B or C. So system error that lead the accessibility of portion of database is an example of malicious attack, and password itself need to be secured from unauthorized access. Obviously password को आप secure करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है? So option यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है? इट इज इनकरेक्ट आंसर, ठीक है? यहाँ पर ए तो फॉल्स है. अ यूजर कैन गिव द प्रिविलेज, ए इनकरेक्ट है, ठीक है? बस अब आपका जो आ जाता है ऑप्शन डी, सी इज करेक्ट. एक्चुअली यहाँ पर सी पर करेक्शन टेक आएगा, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो ना सिस्टम एरर दैट लीड टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ पोर्शन ऑफ डेटाबेस इज एन एग्जांपल ऑफ मैलिशियस अटैक. तो बेसिकली इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ मैलिशियस अटैक, it is indicate the technical issue vulnerability within the system. ये technical issue है, ये vulnerability है, ये malicious attack नहीं है. सिस्टम एरर है ना, सिस्टम एरर अटैक कैसे बन जाएगी? सिस्टम एरर है, सो इट इज अ vulnerability, इट इज अ टेक्निकल इशू. नाउ पासवर्ड इटसेल्फ, भाई पासवर्ड भी तो छुपा कर रखते हो ना. नीड टू बी सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. यस, बी एंड डी इज द आंसर. B and D is the correct answer. Now, which of the following is are true in the case of tree locking? ट्री लॉकिंग, ट्री का टॉपिक बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया और सिर्फ उसमें से ही ये क्वेश्चन आया है. सो ट्री लॉकिंग, इट इंश्योर शॉर्टेड वेटिंग टाइम, इट इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक, ट्रांजेक्शन कैन लॉक द आइटम अर्लियर, इट डज नॉट इंश्योर ग्रेटर अमाउंट ऑफ कंकरेंसी. तो देखिए ये रहा मेरा स्लाइड, क्लास का स्लाइड है. ट्री प्रोटोकॉल, व्हाट ओनली एक्सक्लूसिव लॉक हम यहाँ अलोकेट कर सकते हैं. द फर्स्ट लॉक टी हम किसी भी डेटा आइटम पर अप्लाई कर सकते हैं. आई कैन अप्लाई फर्स्ट लॉक जब आप लेते हो तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू ई, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू जे. लेकिन जब आप सेकेंड लॉक लेते हो या सब्सिक्वेंट लॉक होता है तब एक कंडीशन आ जाती है कि यदि आपको जे को लॉक करना है, सपोज इनिशियली फर्स्ट स्टेप में आपने ई को लॉक कर लिया, ना यू वांट टू लॉक जे, तो पहले आपको इसके पेरेंट्स को भी लॉक करना होगा, देन ओनली यू कैन लॉक दिस वन. दिस इज द ट्री लॉक, है ना? ये ट्री लॉक है. डेटा आइटम मे बी अनलॉक्ड एनी टाइम. द डेटा आइटम हैज बीन लॉक्ड एंड अनलॉक टी कैन नॉट बी सबसिक्वेंटली रीलॉक. जिसको आपने लॉक किया था और अनलॉक कर दिया था, अब उस डेटा आइटम को आप अगेन एक्सेस नहीं कर सकते. एक पूरी क्लास की पीपीटी है. The tree protocol ensure conflict serializability as well as freedom from deadlock. याद रखिएगा. Unlocking may occur earlier in the tree locking protocol than the two-phase locking protocol. Shorter waiting time होते हैं, concurrency increase होती है, protocol is deadlock free and rollback is not required. So इन्हीं properties में से क्वेश्चन आपसे पूछा गया. पहला, it ensure the shorter waiting time. Yes, it ensure freedom from deadlock. ट्रांजेक्शन कैन लॉक डेटा आइटम्स अर्लियर, नहीं जब रिक्वायरमेंट है तब आप लॉक करिए. एंड इट डज नॉट इंश्योर ग्रेटर अमाउंट, इट इंश्योर द ग्रेटर अमाउंट ऑफ कंकरेंसी. द डेटा आइटम फर्स्ट फेज में आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ओके
अनलॉकिंग में ऑकर अर्लियर, लॉकिंग नहीं, अनलॉकिंग में ऑकर अर्लियर ये है, ठीक है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। अनलॉकिंग में ऑकर अर्लियर इन प्री लॉकिंग प्रोटोकॉल देन द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, है ना। ट्रांजेक्शन कैन लॉक नहीं, अनलॉकिंग कैन ऑकर अर्लियर, अनलॉकिंग कैन ऑकर अर्लियर। नाउ वी हैव यूनिट 5। इस बार यूनिट 5 बहुत सिंपल दिया था, न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए थे, डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछे गए। तो सी द बैच मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग मॉनिटर एंड रिटरेंट प्रोसीजर, बैच मल्टी प्रोग्रामिंग allow the more efficient use of man memory. No user no longer has direct access to the processor, maximize the processor use and minimize the response. तो obviously देखिए, जो आपका प्रोसेसर यूज बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए, है ना। प्रोसेसर के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए ही हम मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए। नाउ वी हैव मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम, ये किसमें होता है, टाइम शेयरिंग, राउंड रॉबिन जो आपकी एल्गोरिथम है वो टाइम शेयरिंग पर बेस्ड है, और उसके लिए हमने आपको बताया हुआ है कि राउंड रॉबिन का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो मिनिमम है, वो मिनिमम है, सो इट मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम। वैसे नाउ सी मॉनिटर, मॉनिटर किसका कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के लिए, जब हम प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं उस टाइम यूज होते हैं। तो नाउ यूजर नो लॉन्गर हैज डायरेक्ट एक्सेस टू द प्रोसेसर, एक सिंक्रोनाइज वे में हम एक्सेस करते हैं। और रिट्रेंट प्रोसेस इट अलाउ द मोर इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, बिकॉज जब रिट्रेंट प्रोसीजर वो प्रोसीजर होती है दैट विल लोड इन द मेमोरी ओनली व्हेन द एग्जीक्यूशन इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी पोर्शन में ही रहेंगे, है ना, जस्ट लाइक द पेजिंग ही कॉन्सेप्ट होता है। सो व्हेन द कॉल विल बी फॉर द रिटर्न प्रोसीजर देन ओनली इट विल बी लोडेड, अदरवाइज ये अपने सेकेंडरी मेमोरी में रहेंगे, ये मैन मेमोरी कंज्यूम नहीं करते हैं। थ्रेड स्पॉन, ब्लॉक थ्रेड, जैकेटिंग एंड फ्लश to convert the block system call into non-blocking call. To reclaim the page, the processor turns the execution of another ready thread, and thread is provided with its own register context. ठीक है, तो जब आपने सबसे बोला थ्रेड स्पॉन, तो भाई थ्रेड इज प्रोवाइडेड विद इट्स ओन रजिस्टर कॉन्टेक्स्ट, इसके अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ जब आप थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या थ्रेड की कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द थ्रेड स्पॉन। नाउ सेकंड इज ब्लॉक थ्रेड, ब्लॉक थ्रेड process turn the execution thread into another एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर रेडी थ्रेड। तो जो करेंटली एग्जीक्यूशन थ्रेड होगी वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो ब्लॉक थ्रेड क्या है, प्रोसेस टर्न टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर रेडी थ्रेड एंड करेंटली एग्जीक्यूशन थ्रेड इज गोइंग टू बी ब्लॉक। जैकेटिंग, जैकेटिंग कॉन्सेप्ट होता है आपका कन्वर्जन ऑफ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल इनटू नॉन ब्लॉकिंग। एंड फ्लश टू रिक्लेम द पेजेस, to reclaim the memory, this concept is called the flush concept. इसको आप क्या बोल रहे हो, flush. Now which of the following is not correct about the virtual memory segmentation? Segmentation again memory management है, लेकिन यहाँ पर हम जो मेमोरी एलोकेशन करते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ सेगमेंट, इस सेगमेंट पर बेस्ड होता है। So memory segmentation, it is not necessary टू लोड ऑल द सेगमेंट। यस, डायनेमिक सेगमेंटेशन में आपको कोई भी जरूरत नहीं कि आप सारे सेगमेंट, मैन फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, मैन फंक्शन का सेगमेंट लोड कर दो, फंक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, फंक्शन 1 को लोड कर दो। इट हैज नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इट हैज लार्ज वर्चुअल एड्रेस स्पेस एंड इट प्रोवाइड द लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए सेगमेंटेशन का मल्टी प्रोग्रामिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मल्टी प्रोग्रामिंग इज डिसाइडेड बाय द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। कौन कंट्रोल करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज कंट्रोल्ड बाय द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इट इज डिसाइडेड बाय द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। सो देयर इज नो लेन देन बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड सेगमेंटेशन, रेस्ट आर ट्रू। ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, सेगमेंटेशन सफर फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन,
है ना, जो सेगमेंटेशन है इट सफर फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इट हैज लार्ज वर्चुअल एड्रेस स्पेस, इसीलिए इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि ये वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। नाउ which of the following control problem does not exist when the process is unaware of each of during the interaction? तो बेसिकली जब हम अनअवेयर हैं, है ना, अनअवेयर है कि कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, या लाइक हमको ये नहीं पता कि हमारे पास 2 एटीएम आपके एक रूम में दे दिए गए हैं और उनको सेपरेट कर दिया गया ना, मल्टीपल प्रोसेस एक ही रूम के अंदर है ना, तो मल्टीपल प्रोसेस दे आर अनअवेयर ऑफ ईच अदर ना, सो दे कैन इंडिविजुअली एग्जीक्यूट देयर टास्क, दे कैन परफॉर्म देयर टास्क। सो कौन सा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इट इज अबाउट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि इफ समवन इज यूजिंग रिसोर्स अदर हैज टू वेट, है ना, यदि कोई एटीएम से विड्रॉ कर रहा है अदर हैज टू वेट, बट इफ वी आर अनअवेयर कि दूसरे रूम में कितने लोग हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, वी कैन डू आवर टास्क, सो यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ रेड लेबल हर बार मैंने बोला है और इसका ये पीपीटी हर बार आपसे शेयर किया हुआ है कि भाई इसको याद रखिए, इससे ही सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं रेड लेबल्स के सारे। रेड लेबल 0 में क्या होता है, नॉन रिडंडेंट स्ट्रिपिंग होती है, यहाँ मिरर्ड स्ट्रिपिंग होती है। रेड 2 में आ जाता है एरर करेक्शन कोड, रेड 3 में आती है बिट इंटरलीविंग, रेड 4 में आता है ब्लॉक इंटरलीविंग, रेड 5 होता है ब्लॉक इंटरलीव विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, and red 6 is p plus q. So like you can see आपका आंसर क्या है, रेड 2 इज एरर करेक्शन कोड आ गया था। नाउ रेड 3 बिट इंटरलीविंग था, ठीक है। नाउ रेड 4 ब्लॉक इंटरलीविंग था, रेड 6 ये बचा रीड सोलोमन कोड्स। तो रीड सोलोमन कोड आपका यूज किया जाता है रेड 6 में, ठीक है, रेड 6 में रीड सोलोमन कोड, उसका डिटेल मैंने यहाँ दिया हुआ है। Now we have next is which of the following is not a characteristic of specialized embedded operating system? Embedded operating system, ठीक है, क्या होते हैं भाई, लाइक जैसे आपके रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, तो इसमें स्मॉल साइज के ऑपरेटिंग सिस्टम डाले जाते हैं सो दैट वी कैन हैव द वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके, और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो उसमें फिर एम्बेड किए जाते हैं स्मॉल साइज। सो रियल टाइम शेड्यूलिंग पॉलिसी यूज करते हैं, रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है, प्रोवाइड द स्पेशल नॉन सीक्वेंशियल फाइल एंड प्रोवाइड फिक्स एंड वेरिएबल साइज पार्शनिंग। तो इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, इट डज नॉट प्रोवाइड स्पेशल सीक्वेंशियल फाइल, है ना, इट डज नॉट प्रोवाइड सीक्वेंशियल फाइल नहीं, फाइल मैनेजमेंट से यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। रेस्ट, यस, रेस्ट आर द, it have the it have the real time scheduling, it have the response to the external interrupts, and it have the special operating system that provide both the fixed and variable partitioning। आप इस पीपीटी को गो थ्रू करिएगा for all these property। Now see the order of step in address translation in Linux virtual machine scheme will be, ठीक है, रजिस्टर, ऑफसेट, पेज डायरेक्टरी, पेज टेबल एंड पेज मिडिल डायरेक्टरी। तो जो स्टेप्स है कुछ इस तरीके से होती है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द रजिस्टर, है ना, और जैसे ही आपको रजिस्टर पता चला आप रेस्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। वाई शुड स्टार्ट विद रजिस्टर, बिकॉज देखिए जो आपका वर्चुअल एड्रेस है वो इनिशियली कहाँ प्रेजेंट होगा, दैट विल बी इन द रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर के बाद हम उस पेज को सर्च करेंगे इनटू द पेज डायरेक्टरी, फिर उसकी एंट्री देखी जाएगी इनटू द पेज मिडिल डायरेक्टरी, फाइनली हम एंट्री चेक करेंगे इनटू द पेज टेबल, एंड फाइनली यू विल हैव ऑफसेट, फाइनली यू विल हैव ऑफसेट, दैट इज फिजिकल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन 2, यहाँ आंसर आपका बनेगा ऑप्शन 2। ये सीक्वेंस मैंने मेंशन कर दी है। नाउ सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विल बी, फाइंड अ पेज फ्रेम दैट इज नॉट करेंटली बी, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपको पता है ना कि यदि कोई पेज आपको मैन मेमोरी में नहीं मिलता तो हम एक फ्रेम सेकेंडरी मेमोरी से पेज को लोड करते हैं। यदि फ्रेम ऑलरेडी एम्प्टी है देन डायरेक्टली लोड करिए, और यदि फ्रेम एम्प्टी नहीं है सो वी हैव टू रिप्लेस वन फ्रेम, है ना, किसी एक फ्रेम को LRU के बेस पर, किसी एक फ्रेम को ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के बेस पर, या
फीफो पेज रिप्लेसमेंट के बेस पर रिप्लेस करना होता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा है। फाइंड द फ्रेम दैट हैज नॉट करेंटली बीइंग यूज्ड, चेंज द पेज टेबल। यस, यदि आप इसको अपडेट करोगे तो पेज टेबल भी चेंज करोगे। यूज फ्रीड फ्रेम, नो फ्रेम इज फ्री, फ्री अ फ्रेम। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए स्टोरी? डी से, ई से, बी से और डी से। सो वी हैव थ्री ऑप्शन। ऑप्शन डी, नो फ्रेम इज फ्री। ऑप्शन ई, फ्री अ फ्रेम, तो ऑब्वियसली फ्रेम फ्री नहीं होगा तब हम फ्री करेंगे। बी, चेंज द पेज टेबल, ये भी बाद में होगा। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट जा रहा है यहाँ पर, 2 और 3 को आप एलिमिनेट कर सकते हो। वी शुड स्टार्ट विद डी। नाउ डी के बाद ए और ई। तो ए क्या बोलता है? फाइंड द फ्रेम दैट इज नॉट बीइंग करेंटली यूज्ड, या ई बोल रहा है फ्री अ फ्रेम। तो ऑब्वियसली फाइंड अ फ्रेम, फाइंड अ फ्रेम दैट इज नॉट बीइंग करेंटली यूज्ड, देन E, free a frame, then change the page table and finally use the freed frame. तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, आंसर 1। ठीक है, आंसर 1। नाउ वी हैव नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिस इज योर PYQ। कई बार हमने क्लास में सॉल्व किया हुआ है इस क्वेश्चन को। सो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी पूछा था। काउंट द रीजन, 1 2 3 एंड +1, सो इट इज 4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 4, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? व्हाइट बॉक्स में आप क्या चेक करते हो? लॉजिक इज वर्किंग प्रॉपरली, जो कोड लिखा है उसमें हर एक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं, जो लूप है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, जो इफ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, उनके सारे ब्रांचेस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। सो इट इज पाथ टेस्टिंग, इट इज लूप टेस्टिंग। बट रिग्रेशन टेस्टिंग, इट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। नॉन फंक्शनल की बात आ रही है, सो नॉन फंक्शनल भी किस में चला जाएगा? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली। फॉर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अश्योर कर रहे हो तो आप क्या देखते हो? एग्जीक्यूशन ऑफ कोड करते हो, नो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड होगा। ये देखो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसी तरीके से प्रिवेंटिव टेक्निक है या करेक्टिव टेक्निक है? क्वालिटी अश्योर करना आपका, क्वालिटी अश्योर करना आपका प्रिवेंटिव टेक्निक है, और यहाँ हमको कोड का एग्जीक्यूशन नहीं करना होता है। वी हैव टू, कोड एग्जीक्यूशन टेस्टिंग में रिक्वायर्ड है, क्वालिटी एश्योरेंस में रिक्वायर्ड नहीं है। सो नो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। हाँ, तो आंसर क्या होगा? बी एंड सी। इट इज अ करेक्ट, प्रिवेंटिव, करेक्शन नहीं करते हम, अश्योरेंस में हम प्रिवेंट करते हैं टू द एरर। We have to maintain the quality. Now see, arrange the following so that it can be placed in perfect appropriate order: प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग, कम्युनिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में दिया हुआ है, CPMCD। ठीक है, हमने सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, CPMCD। कम्युनिकेशन, वैसे भी डी से सॉल्व हो रहा है, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, कोडिंग, देन यू हैव, सॉरी, communication, planning, modeling, coding and deployment. Okay, so it is option D. The ratio of error found before software delivery and the total error is called defect removal efficiency. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? defect removal efficiency. Which of the following is not a goal of reverse engineering? reverse engineering आप क्यों करते हो? so that you can understand the design of software, so that you can understand the SRS of the software, है ना? तो इसके लिए आप रिवर्स करते हो, आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सके, लॉस्ट इंफॉर्मेशन समझ सके, साइड इफेक्ट एंड डेटा फ्लो। तो बेसिकली हम साइड इफेक्ट नहीं डिटरमाइन करते, हम डेटा फ्लो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम रिवर्स रिकवर करते हैं लॉस्ट इंफॉर्मेशन। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग, यू हैव द सॉफ्टवेयर बट उसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उस सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको एक्सप्लोर करना, उसके कोड से डिजाइन को समझना, उसके कोड से डॉक्यूमेंटेशन बनाना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, रिवर्स इंजीनियरिंग है। नाउ मैच द फॉलोइंग: वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, इंटरनल लॉजिक एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपको पता है
कि भाई जो वेरिफिकेशन है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए करते हैं कि भाई जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हुई या नहीं। वैलिडेशन आप क्वालिटी कंट्रोलिंग के लिए करते हो। इंटरनल लॉजिक हम चेक करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। एक्सटर्नल लॉजिक हम चेक करते हैं इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। चलिए, सो यूनिट 7 वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ दिस इज द टुडेज वीडियो। प्लीज लेट मी नो कि सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में यदि आपको प्रॉब्लम है, and if these session are helpful, do share and give your feedback. That will motivate me to keep recording and all. Thank you everyone. Thank you. All the very best.